we've got big breaking news coming in from Uttar Pradesh's Sambhal, where remember violent clashes broke out, resulting in the death also of 4 people. Police have registered a case now against the Sambhal MP Ziaur Rahman and local MLA son Sohail Iqbal for instigating the violence. According to the police, in the case that they've registered against the SP MP and the local MLA's son, they've accused them of inciting violence in a planned manner, of ensuring people gathered in large numbers and resorted to violence. This is the big breaking news that's coming in. अब यही है कि अफसोस है कि इस प्रकार के कोई बाहर के लोग इस संभल के अंदर जो अमन व अमान है, जो सुकून है, उसको बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और एक याचिका दायर करते हैं। और हमारा कोर्ट भी इतनी जल्दबाजी में बगैर कोई नोटिस दिए, हमारे पक्षों को सुने बगैर आदेश दे दिया गया। और फिर उससे भी ज्यादा जो तेजी हमारे पुलिस प्रशासन ने दिखाई, आदेश को पढ़े बगैर भी एकदम से यहाँ पे सर्वे कराने आ गए। सर्वे अगर कराना था तो पहले हम तो कहते हैं हम कोर्ट के आदेश से ही असहमत हैं, पहले हमारे पक्षों भी सुनना चाहिए था। और फिर पुलिस प्रशासन ने इतनी जल्दी दिखाई और फिर ये आदेश हम कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। Okay, let's bring in Himanshu Mishra on this. Himanshu, we've just heard, in fact, from the SP MP in question, who's blaming outsider elements. पर जो पुलिस केस है, उनमें इस MP के खिलाफ क्या आरोप है? देखिए, लोगों को उकसाने का आरोप है। ये जो मेन जो FIR दर्ज हुई है संभल कोतवाली में, जिस इलाके में ये शाही जामा मस्जिद आती है संभल की, वहां पर ये FIR दर्ज हुई है। और FIR में कई धाराएं हैं जिसमें लोगों को उकसाना, भीड़ जुटाना, ये जो मेन धाराएं हैं, जो 2 हैं। और इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी FIR में जो हमारी सूत्रों की जानकारी मिली है कि लोकल जो MP हैं जियाउर रहमान, उनका और एक लोकल विधायक हैं, उनके बेटे, इन 2 लोगों का नाम है। इसके अलावा अज्ञात लोग हैं। अब क्योंकि जो FIR दर्ज हुई है उसमें कई धाराएं हैं, इन्वेस्टिगेशन अच्छी जब आगे बढ़ाई जाएगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि किसका क्या रोल था और उसके बाद उस रोल के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अर्चिता। Thank you, Himanshu, for getting us those details. The investigation underway, but the big update that's come in, the SP MP Ziaur Rahman has now been booked for inciting the riots, in which unfortunately 4 people have lost their lives. Let's tell you about what exactly played out in Sambhal that's led to the showdown. So the violence essentially erupted during a court-ordered survey of the Shahi Jama Masjid, sparked by a dispute claiming that a Harihar temple once existed at the site. Tension started when a large group of people gathered near this mosque. They began shouting slogans as the survey team commenced its work at the Shahi Jama Masjid. Protesters then resorted to violence, torching vehicles, pelting stones at the cops, who responded by using tear gas and batons to disperse the mob. At least 4 people have died as a result of this violence. 20 security personnel were injured. As of now, prohibitory orders are in place. Internet has been suspended. Schools are shut. According to officials, 10 people have been detained. And right now, an investigation is underway to find out exactly who instigated the violence. SP Chief Akhilesh Yadav has questioned the Yogi government over its inaction. He's also called for the Supreme Court to take cognizance of the matter, adding that tension is now spreading because of the survey. आप ये देखिए, पूरे इलाके में यहाँ पर आपको शांति नजर आएगी। हर जगह अगर कुछ नजर आएगी तो पुलिस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। आप देखिए, जो रात भर ड्यूटी पर लोग यहाँ पर मौजूद थे, DIG मुरादाबाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो पूरी रात जिन पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी की, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं और इस पूरे इलाके में एक तरीके से गश्त लेकर देख रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 21 लोगों को डिटेन किया गया है, FIR दर्ज की गई है और जांच बढ़ाई जा रही है। दरअसल पुलिस की जांच में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो हिंसा की शुरुआत हुई, क्या बाहर से लोग आए थे,
क्या इस हिंसा की साजिश पहले रची गई थी? हमने देखा यहाँ पे पूरी शहर शांत है, लोग अपना अपना काम कर रहा है और साथ साथ हमारा फोर्स सेक्टर स्कीम लागू है, हर मेन इंपॉर्टेंट हम लोग सभी निगरानी रखा है और लोग से भी संवाद, लोग से जो संप्रांत लोग है संबल का, उनसे भी वार्ता किया, उन लोग से भी अपील किया, सभी फीस का अपील किया, साथ साथ आप लोग अपना नॉर्मल रूटीन करिए, हम अपना शांति व्यवस्था के लिए पूरी हम लोग का अच्छा है। संबल अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ सकता। जो कल हंगामा दिन में हुआ था सुबह यहाँ पर, उसके बाद कोई और हंगामे की रिपोर्ट कहीं से शहर की किसी नहीं, अभी तक कहीं नहीं हुआ, इस तरह कोई बात नहीं। कल जो हुआ तो हुआ, उसके बाद कहीं नहीं, सब जगह शांति कोई नहीं। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या डिटेंशन ही है? अभी तो कल हम लोग ने कुछ लोगों को मौके पर पकड़ के आए, अभी उनका सब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कौन कौन वीडियो फोटो से आधार पर वेरीफाई कर रहे हैं। अभी उतनी ही, अभी तो अभी अरेस्टिंग नहीं, अभी डिटेंशन नहीं, अभी डिटेंशन। जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है, उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं, सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि कोई किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। Certainly. कर्फ्यू लगाया गया है इस तरीके? कोई कर्फ्यू नहीं है, चीजें नॉर्मल हो रही हैं और हम लोग इसी के लिए प्रयास करते हैं। बातचीत जारी है लोगों से कि सामान्य हालात हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो कल से ही प्रयास में हैं कि सामान्य हालात हो, लोगों को समझाया जा रहा है। आपने देखा कि हमारे डीएम सर और एसपी सर ने लगातार अपील किया, तो हम लोग तो इसी प्रयास में हैं कि हालात नॉर्मल हो। और आपको सड़कों पे दिख भी रहा होगा कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। कल जो वहाँ पर मस्जिद के पास हंगामा हुआ, उसके बाद क्या शहर की किसी और हिस्से में कोई हंगामा या कोई और? नहीं, छिटपुट चीजें रही, बहुत बड़े पैमाने पर कोई हंगामा। पूरी तरह मैं तो इसे मानता हूँ 100% प्रशासनिक और उत्तर प्रदेश शासन जिम्मेदार है। समय जहां तक है, क्या चुना है, फिर एक संवेदनशील मुद्दा था तो इसमें सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? और 4 जानें चली गई हैं जो मुझे रिपोर्ट मिली है, कम से कम। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, खिराज अकीदत देता हूं, परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं गुनाहगार मानता हूं संभल प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को इस संपूर्ण प्रकरण के लिए। It is very unfortunate and sad that the government of Uttar Pradesh, which is led by Adityanath, has doing these kind of communal hatred. The violence against minorities has continued to increase in Uttar Pradesh, and we all condemn those kind of incidents. We will continue to raise those issues against this kind of hate politics, and we will continue to stand against those kind of attack on the minorities. बहुत ही दुखदाई है कि अभी भी यही बंटवारे की सोच से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस तरीके से प्रोवोकेशन हो रहा है और वायलेंस देख रहे हैं, इट्स शेमफुल। और जो भी इस लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस फोर्सेस पे अगर किसी तरीके का हमला हुआ है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जो सारे देशों में जा जाकर प्रचार करते हैं, वो अपने राज्य में सतर्कता से काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल करेंगे।